Let's get to the chase. This is your preparation timeline. This is how you should be dividing your whole preparation journey month-wise and phase-wise. If you complete phase 1 on a really good note, that you have understood the concepts, you built your foundation, trust me, you will be in the top 15 percentile of UPSC competition. If you are preparing for 2027, start with think like you are preparing for 26. Forget about the I have 2.5 years. ये सब आए जा रहा है. यहाँ से तो पूरे 20-22 क्वेश्चंस आए जा रहे हैं for years. Like there is no way आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं. आपको इसको रैंकर्स के जैसे 1 पेज नोट्स में कन्वर्ट करना है. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, eventually you should be able to do for mains preparation. But फिर भी if there is a less time एंड इफ यू आर अ बिगिनर, आपको ये सब नहीं पता है इतना कंटेंट अभी, फ्लैश नोट्स ये करके दे देगा. ये रहा 33 पेजेस फ्रॉम लक्ष्मीकांत कन्वर्ट इनटू द 4 पेजेस ऑफ फ्लैश नोट्स. फोकस ऑन दिस. ऑलमोस्ट 470 प्लस मार्क्स. लोगों के 430 क्रॉस नहीं होते यार, 470 प्लस मार्क्स है. आपको लगता है ये सिर्फ मेंटरशिप से हो जाएगा? इट टेक्स कंटेंट प्लस मेंटरशिप प्लस स्ट्रेटेजी, फॉल्ट फाइंडिंग, कोर्स करेक्शन. एक थर्ड पर्सन के जैसे मेंटर आपको दूर से देख सकता है, यार कहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कोर्स करेक्ट कर दो, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इसको 2-3 अटेम्प्ट बाद रियलाइज होगा. That is the real mentorship. Hello everyone. If you are a beginner or working professional thinking to attempt UPSC Civil Service exam in 2026 or 2027, and if you have started your preparation already, or if you are thinking to start preparing, then this video is just for you. A lot of times you will come across people, aspirants, who have been attempting this exam for 4 years, 3 years, 6 years, and even more, right? What is it? What are the mistakes that they are making that it takes so many years for them to qualify this exam? Whereas every year there are certain category of aspirants who are making it through in their 1 or maximum 2 attempts. That to getting single digit, double digit rank. There has to be something there that you and me both can learn from. This video is for that. I will make sure that I will tell you every single thing about what is the strategy for 2026 or 7, what kind of content you should be preparing, what kind of notes you should be making, what kind of daily planning you should be doing, so that you have the best chance to qualify civil service in your 1 or maximum 2 attempt. First thing first, this is the date of your exam. Your exam is going to be on May 2026. That is your prelims. Your mains will be in August 2026. Make sure that you have the clock running and you understand how much time is left for the exam. You have exactly almost 11 to 12 months left for if you're attempting in 2026, and so on for 2027 folks, right? Let's get to the chase. This is your preparation timeline. This is how you should be dividing your whole preparation journey month-wise and phase-wise. I'll walk you through. Starting with June, we are in the June right now. Now, please understand that these things, all the months, they're divided in phases. That's how we approach mentorship or preparation journey at Civils Daily. So try to bring your preparation as close to as this timeline. Here is a phase 1. Phase 1 is focusing on building foundation, which is covering big fours: history, geography, polity, economy, right? You're doing basic PYQs and micro theme. We'll discuss in detail about the micro themes. What are the core books and the NCRTs? This is making sure that if you complete phase 1 on a really good note, that you have understood the concepts, you have built your foundation, trust me, you will be in the top 15 percentile of UPSC competition. A lot of people won't even get off from here. They will not be able to properly complete even this. Next phase, you have some buffer week so that you can revise, or if something else you want to do, etc., note making, etc., you can do that. The next phase comes when you are focusing on the mains preparation. From September to January, this is the only time you have for your mains preparation. This is phase 2. You're covering your GS, you're covering on parallel, you're covering your optional, you're writing a lot of mains test series. That is your answer writing, right? You're covering your essay answer writing, you're writing your test for optional paper, making all the notes required, etc. And then prioritizing mains syllabus here using a lot of micro themes. I'll again discuss that. Once your phase 2 is over, trust me, you'll be in the top 80 percentile of the competition. A lot of people won't even make this transition.
Let's come to the phase 3, which starts from January up until the prelims. Of course, this is the time when you should be focusing on your prelims preparation. Prelims is becoming very unpredictable. So make sure that you have your prelims micro theme ready. You have all your one-pager notes. We'll discuss this in detail. You're writing a lot of prelims mock test. You're sitting with your mentor and you're doing a lot of post-test discussions. Everything is in front of you. Make sure that you also build your preparation timeline and macro timetable, which should follow generally across these months. Like this is a macro timetable I'm giving you if you are preparing for 2026 or 7. Done. Once you have completed this transition to this transition, you will be in the top 99 percentile of the UPSC competition. From here on, a lot of revision, a lot of micro theme revision, a lot of prioritization, a lot of one-pager note making, then revising them a lot, attempting a lot of mock tests, sitting with mentor, figuring out gaps. What are the problems in your MCQ aptitude? Are you scoring above average at par or not? If not, what is the issue? There's a lot of heavy, sharp feedback that you need from mentor in these last 90-100 days, because prelims is becoming unpredictable, so that you have built that resilience and you're comfortable with the exam like prelims, right? Hopefully you make through prelims. This is the D-Day, right? Immediately after that, you don't want to be in a situation where you are just waiting for next 3 weeks, 2 weeks for the prelims result. You should always be in a situation where you're comfortably 5 to 10 marks above prelims cutoff, so that you are not wasting those 2-3 weeks. You're directly able to jump to your mains preparation after the prelims. Of course, you can take like a 1 or 2 day break there, right? Once that happens, from May to August, this is the time, of course, obviously for mains. Here again, what you're doing is you are prioritizing the whole main syllabus based on a lot of micro themes. Again, I'll show you all of those micro themes. Second, once you have those micro themes ready, you should have the one-pager notes for them. You have already made them in your phase 2 and in your phase 3. You have to enrich those one-pager notes through X Factor notes. I will be telling you, and you can freely download them, or if you are living in Delhi, come to ORN, all the bookshops, major bookshops, ask for Civils Daily's X Factor notes, you'll get it. Enrich your notes with X Factor. I'll show you your X Factor notes. Once that is done, you have to write a lot of mains mock test. There is no other way to improve your answer writing capability, answer writing skills, structuring, how will you frame sentences, how will you enrich your answers, adding a lot of data, facts, figures, committee, all the major judgments, etc., unless you actually do it. That is one part. Second part is, because you will not have that much time, you also have to do optional, etc. At least in GS, you should be doing a lot of answer thinking or brainstorming. This is what rank 59 used to do, Benjo. It helped him a lot. Make sure if you're not able to write answers, you at least brainstorm the dimensions. You read a question, you try to think about what kind of answers or dimensions will you write in that answer. How will you frame your intro? How will you transition from intro to your body? How will you write the way forward, conclusion? What kind of data, facts, figure, diagram? What kind of enrichment will you do, etc., right? This will help you compensate for not able to write a lot of answers. If someone has written 1,000 answers and if you have written 500, if you want to compete with this person, you have to do answer thinking for rest of the 500 questions. There is no other way. This is provided both of you have the same time, or if you have lesser time than this person. Answer thinking is a must. Cool. Now you have given now the mains comes. You have written a lot of mains answer, etc. Once you write a lot of answers, you need to make sure that you sit with the mentor so that you have done the post-test discussion. Fix whatever is the gap, and then once that happens, hopefully you qualify, and then there is a last leg of this preparation, which is interview. That is phase 5. We do our own IGP program, sit with the panel, take feedback, etc. See where do you need to improve, and then hopefully you have your name in the list. Again, this is the general broad timeline that you should be following
if you are preparing for 2026. If you are preparing for 2027, start with, think like you are preparing for 26. Forget about the I have 2.5 years, because that there's a chance you will become lenient. So focus on 26 right now. Even if you are attempting 27, focus on this timeline. You will be at a really confident place if you just stick and divide whole of your preparation into 5 or 6 phases, right? This is in front of you. Next thing, which is the most important thing, this is how most of the rankers have qualified the exam. There are just three pillars. You have your strategy, you have your content, and you have your mentorship. We'll break down each of them today. Starting with strategy. Strategy is nothing but what is the direction of your preparation. How will you plan your month? How will you plan your week? How will you plan your day? When I say plan, you should be knowing exactly what are you going to do on in that particular month, in that particular week, of course, in that particular day. Even on a particular day, have you divided a whole day into slots or not? It must be that predictable. Otherwise, you will end up into, I don't know, it becomes a very unconscious kind of a preparation. You're not controlling your preparation. It's other way around. The life is controlling you, or anything else can happen. You'll just sway. You'll become off track. Something might happen and आपका concentration lose हो जाएगा. आप 10-15 दिन के लिए off track हो जाओगे. I mean, there's no point doing that. So that you should be highly accountable. And how do you make sure? You start with a strategy, right? Now you have to understand that this exam, the success in this exam, is not a very normal thing to happen. It's, if you get IAS, this is the success rate. It's like rarest of the rare phenomena. So do not take anything for granted. Make sure that anything that you do is starting from getting or covering NCRTs to making notes to attempting tests to taking feedback on the test. Everything is planned out. There is no edge case left. You have planned and taken care of every nook and corner of this preparation. You are highly motivated throughout the year because you are consistently getting certain feedback from the really good qualified mentors. Please understand, this is the success rate in this exam. Imagine taking anything for granted. You know what will happen. So make sure that you are aware of these realities when you're starting for 2026 and 7. A lot of people, I would say 87-90% people don't even realize this. Right? So make sure, because this is going to be, you're a beginner, this is going to be your first attempt. आप किसी भी चीज को granted नहीं लेना है आपको इस preparation में. Now let's understand how does a timetable looks like for, let's say, if you are preparing for 2026, right? What you need to do is, let's say this starts in March, but this is again a 1.5 year detailed syllabus coverage and revision plan, right? So get the principle behind it. Please understand, it is divided in phases. This is phase 1, 2, 3, 4, right? Your timetable should be divided in phases like this. Of course, then months. Then understand what are the number of days you have allocated for particular subjects. Okay? Look at this. Polity, 24 days. Governance, 7 days. Pick up anything. Modern history and optional, 20 days. You're covering optional in parallel. Then this is not just syllabus coverage. We are also including revision. A lot of people, a lot of you, when you will cover after 6-8 months, when you would have covered your GS syllabus, you'll please understand, revision should be a part of your plan. It can't be something that you do randomly, wake up and then you plan to do it, right? It should be a part of your plan, which you can see here. You'll see GS1 revision advanced test, 2 revision advanced tests, essay advanced test. You're revising, attempting test, taking feedback, etc. Right? Prelims revision test, because now you are in your phase 3, prelims is near, right? Then once prelims is over, mains revision FLT. This is still a macro thing. If you will divide, if you double click here, and then you will find each day has been planned accordingly and slotted, right? I also want you to focus here. They have written, like we have written syllabus here. What is the X factor that you have to do? Let's say for modern history, spectrum and X factor notes. Internal security, you can just cover from X factor notes. What are the old NCRTs? Nitin Singhania, X factor, topper notes. Everything is there, flash notes, test explanation, etc. Right? You can see mains revision, notes prepared using above sources, sectional test revision, FLT model answers. So model answers are also included here. This is the level of preparation that you need to have. This is the level of timetable or macro timetable you need to have if you are attempting for the first time. Do not take anything for granted.
Now here is a weekly, that was a monthly thing. Here is a weekly timetable and daily, which is broken on a daily basis. Look at this. This is your week 1. What this is slot 1. That is 1 hour. I'll study current affairs. Samachar Manthan weekly plus burning issue. Again, same thing. And at the end of the week, the student is going to revise and make notes of the previous week learning. This is in the morning. Look at the slot 2. He or she has decided to do the core subjects. You'll be filling core subject ka naam yahan pe, whatever you are going to study. Again, slot 3, 2.5 hours core subject I am studying. Look at the slot 4, 1 hour I'll do MCQ, right? Whatever I've been studying. And then I'll also do writing practice. On what? Again, on micro themes. Micro themes I'll explain in detail, but micro theme is something which has been again and again asked in prelims, in mains, a topic which has been asked again and again. So you're prioritizing syllabus, and on that prioritized part of syllabus, you are attempting MCQ and answer writing. So it's not just making sure that I understand the subject, I have understood the topic, but you're also getting yourself assessed by writing MCQs and answers. Last slot is 1 hour revision and active recall. So like I said, revision is a part of the plan. It's not something that you come up on random basis, right? So this is again, look at this, polity test, Samachar Manthan is current affairs, everything. There is no, so if this student wakes up on, let's say, 19th of March, Wednesday, he or she exactly knows कहाँ से current affairs करना है, कितना करना है, क्या core subject के second slot में पढ़ना है, third slot में क्या पढ़ना है, कौन सा answer writing और कौन सा micro theme करना है, और क्या revise करना है. This is the level of planning these rankers or aspirants who qualify prelims and mains in their first attempt. This is the level of planning that you need to have. तो कुछ भी granted नहीं लेना है अभी, right? Make sure that you can actually take a screenshot of this and fill your own timetable, right? Let's move on to the second pillar, which is content. That was the strategy part. Let's figure out content now. Content is something which is मतलब आपको इस चीज की कभी कमी होनी नहीं है. तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस कंटेंट को आपको इस तरीके से फिल्टर करना है कि जो यूपीएससी डिमांड करता है, जो यूपीएससी पूछे जा रहे हैं हर साल, उससे क्लोजेस्ट रहो आप. दैट इज द होल पॉइंट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू रिड्यूस द नॉइज, यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आप सिंगल या डबल अटेम्प्ट में ही निकल जाओ इस एग्जाम में. In a very short way, I'll explain you what this means. First is the micro theme. आप जब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि यार पिछले 10-12 सालों में what kind of questions UPSC has been asking in prelims or in mains. Simple. I'll repeat again. When you are starting your preparation, let's say that you are a beginner or a working professional, you have no idea about UPSC, PYQs, this thing that you keep hearing, PYQ करना etc. आपको सिर्फ सिंपल चीज समझनी है कि PYQ ना बिना माइक्रो थीम के आप कर ही नहीं सकते. एंड आई विल गिव एन एग्जांपल. हियर इज द थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं. व्हाट आर दोस टॉपिक्स. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम एंड इफ यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स दे हैव बीन आस्किंग, देयर इज नो पॉइंट. आप फालतू के प्रॉब्लम में फंस जाओगे. आगे जाके आप रैंडम PYQ पढ़ोगे, उसमें कुछ डायमेंशन समझ में नहीं आ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सोर्स, कुछ नहीं आ रहा है. बस लाइक अ चेकलिस्ट आपने कर लिया है कि PYQ करना है, राइट? सो वो नहीं करना है. फर्स्ट, इफ यू आर अ बिगिनर, डाउनलोड दिस माइक्रो थीम PDF. अगर आप दिल्ली में हो तो ORM में जाके खरीद सकते हो, नहीं तो वेबसाइट से जाके ले लो. बट ये आपके पास होना चाहिए आपकी टेबल पे. माइक्रो थीम का एक PDF है, ये होना ही चाहिए आपके पास. अब अनफॉर्चुनेटली जब हमने ये माइक्रो थीम लॉन्च किया है तो ऑलमोस्ट 10 से 15 लोग, सेल्फ क्लेम्ड लोग, अब ये माइक्रो थीम को बिल्कुल ही कॉपी कर लिया उन्होंने अपने अपने नाम से. इवन सर्टेन रैंकर्स आर कमिंग एंड लॉन्चिंग देयर वीडियो ऑन दीज थिंग्स एंड दैट्स सैड. प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, बट या दैट्स द रियलिटी. आई मीन वी आर हैप्पी इफ इट हेल्प्स यू, वी आर हैप्पी. Anyway, we made it open to all. So micro theme is something that we came up original. This is our original innovation. Second is X Factor. Again, Civis Daily owns X Factor, right? This is our original innovation. Same चीज फिर कुछ 2-4 mentors ने, self claim mentors ने ये भी कॉपी कर लिया है. X Factor ऐड कर लो आंसर में, ये कर लो, वो कर लो. I mean again sad, but like I said, हमने सब ओपन कर रखा है. If it helps aspirants, it's fine. Others can keep copying.
सो इसका वैल्यू ये होता है कि जब आपको एक माइक्रो थीम समझ में आ गई है कि यार लेट्स से फंडामेंटल राइट एक माइक्रो थीम है, तो उसको आपको ना प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर वन पेजर में बनाना पड़ेगा उसका स्टैटिक कंटेंट, अगर कोई करंट अफेयर्स कंटेंट है, कुछ नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रखा है एटसेट्रा, उसमें एनरिचमेंट के लिए एक्स फैक्टर होता है, राइट। आई एक्चुअली शो यू व्हाट इट मींस, राइट, कि टू मेक योर let's say if you are getting 5 out of 10 or 4 out of 10, how do you make sure you move to +1 marks or 6 out of 10 of, or if you are getting 3 out of 10, so how can you make sure you get 5 out of 10? that enrichment, आप ऐसे क्या ओरिजिनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में, वो एक्स फैक्टर ला के देता है आपको। अगेन ओरिजिनल इनोवेशन ऑफ सिविल्स डेली, वी हैव लॉन्च देम, ये सब फ्री है, ORN में तो आपको सब जगह मिल जाएगा। देन कम्स फ्लैश नोट्स, स्टैटिक कवरेज इन अ वेरी सिंपल क्रिस्प ससिंक्ट फॉर्मेट, दिखा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा अभी। स्मैश FLTs, ये हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज है, स्मैश मेंस, राइट, फुल लेंथ टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, इट हैज द हाईएस्ट हिट रेशियो एवर। आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लो, स्मैश के बराबर हिट रेशियो किसी का नहीं होगा, आई कैन गारंटी यू एंड आई विल गिव यू प्रूफ्स। मॉडल आंसर्स, लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉडल आंसर सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। द रियल वैल्यू ऑफ मॉडल आंसर इज नॉट रिवीजन। आप जब मॉडल आंसर देखोगे तो आपको बहुत सारे ओरिजिनल पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप शायद नहीं लिख पा रहे हो या आप भूल ही गए हो आंसर में लिखने के लिए। वो पॉइंट्स आपके नॉलेज का गैप है। तो जब आप मॉडल आंसर को अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि यार ये मॉडल आंसर में 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने तो सिर्फ 3 ही लिखे हैं अपने आंसर में, ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ओरिजिनल पॉइंट्स हैं जो शायद कोई नहीं लिख रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मैं अपने एक्स फैक्टर नोट्स या वन पेजर नोट्स को मैं लिख लेता हूँ, बाजू में लिख लेता हूँ, या वन पेजर नोट्स में अपने नोट्स में लिख लेता हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम रिवाइजिंग एटलीस्ट आई रिमेंबर। मॉडल आंसर की वैल्यू वो होती है, नॉट ओनली जस्ट की रिवाइज कर लिया, ये कर लिया, always trying to extract a original point, a way of writing, a introduction, etc. जो आपसे मिस हो गया हो. That is the value of model answer, right? Let's move forward. Now comes the real part, right? Focus for next 10-5 minutes very attentively. These are called as micro themes. ये आपका सरदर्द यूपीएससी प्रिपरेशन का हेडेक बाय 80% नीचे ले आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट, आपका बेस जब बन रहा है ना, फाउंडेशन, आप बिगिनर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, इतना टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना है। यू वेक अप, यू हैव दिस माइक्रो थीम का PDF इन फ्रंट ऑफ यू, you choose subject wise micro theme or whatever is your preference, and then you go and make sure that you have covered that micro theme from your static or reference book in current affairs or from any other notes, etc., whatever is your source, but you have covered those micro themes properly, right? Here's a way. If you want to understand UPSC, you have to understand the PYQ. Isn't that true for any other exam also? आप बिना PYQ को समझे कैसे समझ सकते हो यूपीएससी को? मतलब यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन है, क्या डायमेंशन, etc. तो मतलब प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना फिर आप वही 3 साल बाद आपको ये रियलाइज होगा कि यार ये कर लेना चाहिए था। वो ट्रैप में नहीं फंसना है। अभी बिगिनर हो, अभी वर्किंग प्रोफेशनल हो, इतना टाइम नहीं है, आराम से 4-6 घंटे अगर आप दिन में निकाल सकते हो, आप प्लीज इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। प्लीज ध्यान देकर रखो कि PYQ, और सिर्फ ये जो PYQ चलता है, कोई ये पब्लिकेशन उठा लिया, वो इतनी मोटी बुक उठा लिया है, वो सब नहीं करना है, ठीक है? आप बिना माइक्रो थीम के PYQ कर ही नहीं सकते। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्यों, व्हाई आई एम सेइंग यू दैट। बिकॉज अगर आप सिर्फ PYQ पढ़ोगे तो ऑल यू विल डू इज एंड अप जस्ट रीडिंग सम क्वेश्चन ऑफ सम ईयर। व्हाट हैज हैपेंड इज दैट यू हैव फेल्ड टू कैटेगराइज्ड कि ये कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपने एक PYQ पढ़ा, आप उसको कैटेगराइज ही नहीं कर पाए एक टॉपिक के अंदर, राइट? अगर आप उस टॉपिक के अंदर कैटेगराइज नहीं कर पाओगे एक PYQ को, लेट्स से आप फंडामेंटल राइट पे पढ़े जा रहे हो, बट आपने उस टॉपिक को की फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता आपको कि फंडामेंटल राइट कितनी बार आ चुका है, एक्सेट्रा। तो अगर आपको ना ये पता है कि कैटेगरी क्या है उस PYQ की, ना आपको ये पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार आ रहा है ये हर साल प्रीलिम्स और मेंस में, तो फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस को कैसे पिन पॉइंट करोगे कि ये पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है? दैट इज वाई बिना माइक्रो थीम के PYQ करना इट्स ऑलमोस्ट फुलिश, सॉरी टू से, बट मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, आप बिल्कुल घिस रहे हो खुद को, मत करो यार। वो आराम से ये फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, ठीक है?
Now, like I said, we alone deeply researched, innovated and pioneered micro themes for you. बाकी सब copy paste कर रखा है लोगों ने, but and that's sad, but fine. I mean, if it helps them, it's fine. So let's understand through a tool what is micro theme, and quickly बता दूंगा कैसे करना है. This is a focus area. Like UPSC has been, it's known that they have been asking certain topics. This is our micro theme का tool. ठीक है. अगर आप इसमें देखोगे तो ये माइक्रो थीम्स है, ये सारे के सारे माइक्रो थीम्स है. इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिस्कल पॉलिसी, फ्रीडम मूवमेंट्स, आरबीआई फंक्शन. ठीक है. आप इसमें कहीं पे भी, लाइक लेट्स से आरबीआई फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे क्वेश्चन आ गए. यू हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम दोज माइक्रो थीम्स. लेट्स क्लिक हियर. वो आ गया सारा क्वेश्चन. ये सारा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, एक्चुअल पीवाईक्यू है, विथ आंसर है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कहां से ये लिखा हुआ है, हमने जो करंट अफेयर्स कवर करा. क्लिक हियर. पीवाईक्यू दिया हुआ है, सब कुछ ये दिया हुआ है, राइट. कहां से आया है, सोर्स दिया हुआ है, कोर बुक एनसीईआरटी से आया हुआ है, एटसेट्रा, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स नाउ यू कैन ऑल्सो सी कौन सी माइक्रो थीम किस साल में आई है. ये ऑल दीज आर ईयर्स. नाउ दिस इज फॉर प्रीलिम्स. लुक एट, ये देखो उसका ओवरलैप मेंस के साथ भी है. ये देखो आप कोई भी खोल लो. लेट्स से let me tell you the trend of prelims ka micro theme. These are the geography, economy, polity, etc. Right. Let's choose the names. Now these are prelims micro themes divided. Let's open anything. Let's say art and culture. Okay, let's 5th and 6th schedule, right? ये देखिए, all these micro themes are there. कहाँ से आई है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, पॉलिटी का है, कौन सा क्वेश्चन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. लेट मी शो यू पॉलिटी माइक्रो थीम. दीज आर माइक्रो थीम्स फॉर पॉलिटी. नाउ आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन. इफ यू आर अ बिगिनर, out of these all the micro themes or topics, right, in polity for prelims, what are the topics which UPSC has been asking again and again? और ऐसा क्या रीजन है कि आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे अगर आपको पहली दूसरी बार में एग्जाम निकालना है? तो इट्स दैट सिंपल कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल ये आ ही रहा है, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी आ ही रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी जुडिशरी आ रहा है, डीपीएसपी आ रहा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, ये सब आए जा रहा है. यहां से तो पूरे 20-22 क्वेश्चंस आए जा रहे हैं फॉर इयर्स. देयर इज नो वे आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, राइट. मतलब आपके पास हर एक टॉपिक का 1 पेजर नोट होना चाहिए. लेट मी शो यू द एक्चुअल क्वेश्चन. लेट्स से फंडामेंटल राइट्स है, ये इसको क्लिक करोगे, ये है एक्चुअल क्वेश्चन है. ये दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम फंडामेंटल राइट. कोर बुक एनसीईआरटी से है, इजी है. ये क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन है, एंड दीज आर द क्वेश्चंस, ऑप्शंस, एंड दिस इज द क्वेश्चन. एंड मतलब यू कैन कीप गोइंग. देयर आर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. ये नीचे लिखे हुए सारे क्वेश्चन लिखे हुए. These are all the questions which has been asked. You can see. So this is polity. I can open one more for you. This is geography. Look at the topic, economic human geography से आया जा रहा है. क्लिक करोगे, क्वेश्चन आ गया. ये रहे क्वेश्चंस, ये रहा क्वेश्चंस. तो ये सारा मतलब यू हैव टू हैव वन प्लेस. ये आप किसी एक स्टैटिक बुक से या किसी पीवाईक्यू की बुक से चांस ही नहीं है. आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक आया जा रहा है, किस फ्रिक्वेंसी से आया जा रहा है, उसमें क्वेश्चंस क्या है, करना कहां से. तो मतलब देयर इज नो पॉइंट. सो प्लीज रिमेंबर, आई विल रिपीट अगेन, बिना माइक्रो थीम के पीवाईक्यू करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. आप कर ही नहीं सकते. मतलब करने को तो कर सकते हो, बट उसका कोई पॉइंट ही नहीं है. देयर इज नो इम्पैक्ट. आपका तो एम ये है कि आपको वो टॉपिक प्रॉपरली एक 1 पेजर पे आ जाए, समझ में आ जाए. वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या पॉइंट है. आई विल शो यू 1 या 2 मेंस का ऑल्सो. दिस इज आवर पीवाईक्यू टूल्स. तो ये मेंस की माइक्रो थीम्स है. These are मेंस का माइक्रो थीम. 1815 रिवोल्ट, अकाउंटेबिलिटी, ये एक्ट बेस्ड, एक्ट्स एंड फीचर्स, एग्री फाइनेंस एंड सब्सिडीज. आप कोई भी खोलो, 1854 खोलो, ये क्वेश्चन आप यू कैन सी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, 10 मार्कर, ईयर 2014, जीएस पेपर 1. सो एंड देन यू कैन कीप गोइंग. दिस इज एग्री मार्केटिंग का क्वेश्चन एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो 15 मार्कर एटसेट्रा. सो एंड लाइक आई कैन कीप गोइंग. दीज आर द माइक्रो थीम फॉर मेंस. दिस टूल हेल्प्स यू मेक श्योर कि आपका जो माइक्रो थीम या पीवाईक्यू का सरदर्द है ना, वो विद इन फ्यू वीक्स खत्म हो जाएगा. आप सारे माइक्रो थीम्स एक जगह पे रखे रहोगे,
आप कभी भी क्लिक करके कहीं भी क्लिक करके जाके देख सकते हो कहाँ पे कितना कर लिया कितना नहीं किया है, किस सोर्स से आया है किस सोर्स से नहीं आया है, कितना कवर करना है. सो यू कैन सी गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, IR, सिक्योरिटी, ethics, art and culture, mains, prelims, environment, economic, geography, modern. I can keep going. So मतलब सारा का सारा माइक्रो थीम एट वन प्लेस, राइट, सो दैट आपको ना वो कोई बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है. सिंपल सा टूल है. आओ, सुबह उठो, देखो कितनी माइक्रो थीम बची है, कितनी कर ली है, किसके नोट्स बन गए नहीं बन गए, कौन से डायमेंशन से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एक्सेट्रा. बहुत ही नुआंस्ड डिटेल्ड लेवल पे प्लेटफॉर्म बनाया है हमने. यार ये देख लो 2025 में 2 लाइनर क्वेश्चन कितने थे, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड कितने थे, वन पेयर कितने थे, ओनली ऑल वाले क्वेश्चन कितने थे. ये सब किसी बुक में नहीं मिलने वाला है आपको. तो यू विल एग्जैक्टली नो कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 36 आए थे 2020 में, और वो क्वेश्चन कौन से हैं, वो ये क्वेश्चन भी है. लाइक दिस इज एविडेंस बेस्ड, ये कोई बात नहीं कर रहे हैं. सो दिस वाज द क्वेश्चन. आप मतलब आप उठा के देख सकते हो, ये है, these were the questions, right? Now I'll show you one more table that we have made. Is when a question comes, वो question trace कर पा रहे हो कि नहीं, वो आ कहाँ से रहा है, right? ये भी काफी important चीज है, so that आपके sources भी prioritize रहे, ना कि सिर्फ PYQ. अब देखो 2025 में करंट अफेयर्स नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस से 24 क्वेश्चन आ रखे हैं. जो कोर बुक्स और एनसीईआरटी, कोर मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको बोली जाती है, 40 क्वेश्चन आ रखे हैं. Here is a sum total of 100. 40 क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड बुक से हैं, 24 के 24 क्वेश्चन नॉन ट्रेडिशनल सोर्स से हैं. Now यही कंपटीशन यहाँ नहीं है, ये सबके पास है, ये ऑलमोस्ट सबके पास है. ये 24 क्वेश्चन आप कहाँ से कवर करने वाले हो? आर यू अवेयर ऑफ देयर दोज माइक्रो थीम्स जिनसे एग्जाम निकलने वाला है? ये है ना वो तो 24 क्वेश्चन. तो ये तो सब पढ़ के जाएंगे, सारे सबके पास इसकी बुक है. करंट अफेयर्स आप कहीं ना कहीं से कर ही लोगे. ये 24 क्वेश्चन जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस से जो माइक्रो थीम्स आई जा रही है, जो आपको 20, 30, 15, 10 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकती है, वो तो किसी बुक में नहीं है ना, किसी पब्लिकेशन या किसी PYQ की बुक में नहीं है. तो प्लीज मेक श्योर दैट आपके पास ऐसे टूल्स हो, आपने इतना एनालिसिस कर रखा हो, राइट. लुक एट दिस, ऑल द नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस का है, राइट. So this was for prelims and mains micro theme. This is our tool which makes sure that आपकी प्रिपरेशन हमेशा राइट डायरेक्शन में रहे, आपके टॉपिक्स हमेशा फोकस एरिया में ही रहे जो यूपीएससी आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. जब आप एक PYQ एनालाइज कर रहे हो तो आपको ना 3 चीजें ध्यान में रखनी है. PYQ का एनालिसिस इतना हल्का नहीं करना है कि मतलब बस क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिए एंड देन हाँ मेरे से ये सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो मेरा PYQ का प्रिपरेशन हो गया या मैंने PYQ एनालिसिस कर लिया. वैसे नहीं होता है. द रियल PYQ एनालिसिस लुक्स लाइक दिस. आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डायमेंशंस एक टॉपिक के ध्यान से देखने और समझना है कि क्या उससे कोई क्वेश्चन आ सकता है. पहला लेवल ऑफ PYQ एनालिसिस होता है, आपने उसकी थीम आइडेंटिफाई कर लिया, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया पूरा टूल. आपने बहुत सारे PYQ लिए, आपने देखा किस थीम से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, उस थीम को एक कैटेगरी बनाया और उसकी फ्रीक्वेंसी देखी कितने बार आए जा रहे हैं, वो आपने यहाँ पे देख लिया. ये फर्स्ट लेवल है, लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं. वंस दिस इज डन, डू सेकंड लेवल. आप नेचर ऑफ क्वेश्चन समझो कि इस माइक्रो थीम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या डायमेंशंस पूछ रहे हैं वो आपसे, किस टाइप के क्वेश्चन आए जा रहे हैं, क्या वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, क्या वो स्टैटिक से पूछा जा रहा है, अगर हाँ तो किस सोर्सेस से पूछा जा रहा है, नॉन ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है. आपको पूरा नेचर ऑफ क्वेश्चन भी समझना है कि प्रीलिम्स में भी किस टाइप का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम आ रहा है या फिर कुछ अलग ही वियर्ड से ऑप्शंस आ रहे हैं. मेंस में भी आ रहा है तो किस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कौन से डायरेक्टिव के साथ आ रहे हैं, राइट, कंट्रास्ट ड्रॉ करने के लिए आ रहे हैं. तो आपको यू हैव टू हैव अ सेकंड लेयर ऑफ एनालिसिस कि यार क्वेश्चन आ तो रहा है पर किस टाइप का आ रहा है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, राइट. ये तो बहुत ही कम लोग करेंगे. एंड देन दिस इज द लास्ट एंड आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिगनर हो आप इसको जरूर इसको ध्यान में रखो कि ऑप्शंस एक्सप्लोरेशन भी करना है. क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोबेबल टॉपिक्स मिल जाएंगे उन ऑप्शंस में. कई बार यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप हर साल देखोगे ऐसा होता है कि एक ऑप्शन से अगले साल क्वेश्चन आ गया, दूसरे ऑप्शन से अगले साल क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जा रहे हैं. दैट विल हेल्प यू प्रेडिक्ट सर्टेन टॉपिक्स, आपको प्रिपेयर करने के लिए
यही है वो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस, यही वो प्लेटफॉर्म ने कैप्चर कर रखा है, वो नॉन ट्रेडिशनल माइक्रो थीम्स। आप प्लीज ध्यान रखो कि ये 3 लेवल का अगर पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं हो रहा है तो कुछ मिसिंग है, प्रॉब्लम हो जाएगी प्रिपरेशन में, आप वो फिर 4-6 साल के ट्रैप में फंस जाओगे। आप किसी भी रैंकर से पूछो, ये गलतियां वो पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में कर चुके हैं, चौथे अटेम्प्ट में उनको रियलाइज हुआ तो उनकी रैंक आ गई है। आपको क्यों 3 साल का फाइट मानना है? आप अपनी प्रिपरेशन ही शुरू से ऐसे रखो कि आप बिल्कुल ये सारी चीजें प्रीएम्प्ट कर दो। यू विल नेवर बी यू नो ट्रबलिंग योरसेल्फ विद ऑल द रैंडम नॉनसेंस जो चलती रहती है। आप बिल्कुल शार्प तरीके से प्रिपेयर करो, यूपीएससी पूछे जा रहा है मैं वो प्रिपेयर करूंगा, खत्म। आप ऑप्शनल एक्सप्लोरेशन करो, प्रोबेबल टॉपिक्स ढूंढो, राइट। आप माइक्रो थीम एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद नेचर ऑफ क्वेश्चन ढूंढो, और सबसे पहले आप माइक्रो थीम आइडेंटिफाई करो। ये होता है रियल पीवाईक्यू एनालिसिस। इससे कम कुछ नहीं करना है, अगर आपको पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकालना है हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू शोइंग यू, अगर आपके पास वो टूल नहीं है, बिकॉज दैट टूल इज गिवन टू आवर मेंटरशिप स्टूडेंट्स, अगर वो नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने एवरीथिंग इज गिवन इन अ पीडीएफ। लाइक आई सेड, ये ऑलरेडी कॉपी पेस्ट हो चुका है। half of the institute have picked up this micro theme from us. I don't want to take any names, but yeah, ये सब अपने अपने नाम से चला रखा है लोगों ने, ठीक है। तो ये आपके पास पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सारी माइक्रो थीम आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको सारी माइक्रो थीम you'll get, and for prelims and for mains both, of course, you can see art and culture is a micro theme. art and culture is a micro theme. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सब माइक्रो थीम के नाम है, बुद्धिज्म, सिविलाइजेशन देयर, एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन है, दीज आर पीवाई की क्वेश्चन, किस साल में आए, कितने मार्क्स। सेम हियर सोसाइटी का है, दिस इज सोसाइटी माइक्रो थीम, रोल ऑफ वुमेन एटसेट्रा, तो ये सब है। तो आपको ना एग्जैक्टली पता है, दिस इज नॉट क्लिकेबल, तो आपको ये सब उतना डिटेल में एनालिसिस नहीं पड़ेगा कि नॉन ट्रेडिशनल कौन सी है, ट्रेडिशनल कौन सी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, बट एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आपको पता है कि कौन सा टॉपिक आए जा रहा है। अगेन ये पॉलिटी का माइक्रो थीम है, तो यू कैन सी पॉलिटी माइक्रो थीम, amendments, case law, DPSP, constitutional comparison, bicameralism, committees, parliamentary privileges, right? तो ये these are the micro themes, these are the PYQs, किस साल में आया है और किस क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। बेसिक लेवल पे एटलीस्ट आपका प्रायोरिटाइजेशन फिक्स्ड है। अब आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आपको ना कोई भी पूछेगा कि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम पूछते हैं क्या है, वो ये बहुत ही सिंपल भाषा में माइक्रो थीम्स वो चीजें हैं, वो टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी पूछे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर अलग नेचर पूछ सकता है, बट पूछेगा उसी टॉपिक के बारे में, वो गलत नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि वो टॉपिक्स हमारे सही रहे, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव डन, एंड विच इज एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज का प्रॉब्लम ये है कि एक बिगनर बच्चा या वर्किंग प्रोफेशनल जिसने इंजीनियरिंग किया है, जो मेडिकल से आया है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है या ग्रेजुएशन से आया है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आया है, ऐसे बच्चों के लिए मोस्टली ना एनसीईआरटी से ही शुरू करना पड़ता है उनका प्रिपरेशन, बिकॉज उनको एक रिफ्रेशर चाहिए। वो स्कूल का तो अब इतना तो हमें याद रहता नहीं है, सो दे नीड रिफ्रेशर, राइट। यार जल्दी से पढ़ लूंगा, बेसिक समझ में आ जाएगा, एक्सेट्रा। प्रॉब्लम ये होती है कि दो गलतियां होती है। पहला, आपको लगता है कि ये रिफ्रेशर है, बस यूपीएससी पूछेगा नहीं, ये तो बस फाउंडेशन बन रहा है, असली क्वेश्चन तो रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक से आएगा, लक्ष्मीकांत एक्सेट्रा। रॉन्ग, मैं आपको अभी बता दूंगा, एक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आके हर साल आते हैं, नॉट जस्ट प्रीलिम्स, मेंस आल्सो। सेकंड, आपको दूसरी गलती ये करोगे कि आप एनसीईआरटी उठाओगे एक अच्छे बच्चे के जैसे बुक, मतलब फ्रंट टू बैक कवर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। गलत, उतना टाइम नहीं है, उतना नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ एनसीईआरटी कैसे करनी है। आप बस ऐसे समझो, दिस इज अ 12th क्लास का एनसीईआरटी, हिस्ट्री का एनसीईआरटी। नाउ हियर इज अ थिंग, focus on these colors. I need you to focus on these colors. What does green color say? ग्रीन कलर आपको इसमें कहीं भी दिख रहा है, इसका मतलब है वहां से पीवाईक्यू आ चुका है। यूपीएससी ने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है 12th क्लास की एनसीईआरटी से, जहां भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है। आपको दिख रहा है मोहनजोदाड़ो, कैन यू सी राखीगढ़ी, कैन यू सी धोलावीरा, लोथल, कैन यू सी दिस थिंग? Settlements were generally small, they were virtually so large building. Look at this, archaeologists have been able to construct dietary practice from the finds of charred grain and seeds. ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ये सब they have asked these questions. Blue, it indicates
वो एरिया जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। वी आर नॉट जस्ट टेलिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड, वी आर हेल्पिंग यू एज अ बिगनर एंड वर्किंग प्रोफेशनल प्रिडिक्ट कि यार बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, ये मत छोड़ना भाई, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप, ये सेकंड है। थर्ड, पिंक, ये फैक्ट्स बेस्ड स्टेटमेंट्स है जो बहुत ही फैक्चुअल होता है। ये देखो 6000 BC, कुछ ईयर होगा, कुछ नाम होगा, वो सब। पीच कलर जो होगा वो एक डेफिनेशन है या एक टर्म है। तो आप कहीं भी पीच कलर देखोगे तो यू विल फाइंड लाइक अ डेफिनेशन, जैसे ये है, राइट। येलो वो स्टेटमेंट्स है जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, आपने सुना होगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूपीएससी पूछता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट, अब लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। अब आपको अगर मैं, फॉरगेट दीज कलर्स फॉर अ व्हाइल, कलर डिफरेंशिएशन, अगर मैं आपसे पूछूं यार ये पढ़ना है, तो आपको तो पता नहीं ना पहला पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ में अटेंशन कितना देना है या इंपॉर्टेंस कितनी देनी है, कि इस पेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, इसका नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो सारा पेज सेम ही है। आपको तो बस बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ना है, आपकी कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है ना एनसीईआरटी में या किसी भी सोर्स में। आपने उतना रेजर शार्प अटेंशन थोड़ी दोगे आपकी, यहां से पूछे जा रहा तो ये याद कर लेता हूं, यहां से नहीं तो ये नहीं। नाउ ब्रिंग दिस बैक, आप, योर आईज विल स्टे मोर एट सर्टेन कलर्स, राइट, बिकॉज आपको पता है भैया आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस, तुरंत नोट्स बना लेता हूं मैं, क्योंकि ये पूछे जा रहा है यार, इन लोगों ने ये देखो ये बता रखा है कि ये पूछे जा रहा है, ग्रीन कलर से तो पूछ लिया है, जो आपका ब्लू कलर है वहां से बहुत ही हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनोटेटेड एनसीईआरटी, ये कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज ओरिजिनली डन बाय सिविल्स डेली, वी हैव क्रैक्ड दिस, एंड ये फ्रीली अवेलेबल है बाय द वे। तो आई विल गिव यू अ लिंक टू दिस और क्यूआर कोड टू दिस, आप एंड ऑफ द सेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग एनसीईआरटी। सिंपल थिंग, आई विल समराइज व्हाट आई सेड। यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि जिससे कि आप रैंडम चीजें ना पढ़ो। उसके बाद उसकी डेप्थ ढूंढो कि भाई कितने डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। अगर वो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी में उतने से नहीं हो पा रहा है, उतने पीवाईक्यू से, तो आपको कोई दूसरा एडिशनल सोर्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, आपको ये देखना है कि यार इस तरीके के पीवाईक्यूज या इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, रिकरिंगली आए जा रहे हैं, तो अगर आए जा रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट सेंटेंसेस और टॉपिक्स और पैराग्राफ्स इन द सेम चैप्टर, जिससे एक पोटेंशियली नया क्वेश्चन बन सकता है। This is the most interesting exercise you should be doing when you are preparing NCERTs as a beginner or as a working professional। इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप comprehensively यूपीएससी जैसे चाहता है वैसे प्रिपेयर कर रहे हो। आप रैंडम नॉइज में नहीं पढ़ोगे, पेज टू पेज कवर टू कवर नहीं करोगे, मुश्किल से फ्यू वीक्स में आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप रिकॉल भी कर सकते हो। पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कर ली ना आपने तो वैसे पढ़ लिया जैसे यूपीएससी चाह रहा है, आपने तो वैसे कर लिया जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मतलब उससे अच्छा क्या ही होगा यार। लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यू देख लेते हैं किसी रैंडम दिन, क्योंकि कहीं कोई यूट्यूब देख लिया, और उसके बाद फिर जब तक पीवाईक्यू देख रहे तो एनसीईआरटी भूल गए हैं। मतलब वो रैंडम साइकिल में मत पढ़ो, साथ में ही सब करते रहो, राइट। ये मॉडल आंसर्स है। जब आपकी एनसीईआरटी हो जाए, जब आपके बेसिक हो जाए, तो आपको मेंस का भी पीवाईक्यू देखना है। मेंस के पीवाईक्यू में आपको ये मेक श्योर करना है कि सेम चीज, अब मेंस में कौन सी ऐसी माइक्रो थीम्स है जो यूपीएससी पूछे जा रहा है। GS1 है, 2024 का पेपर है ये भी फ्रीली अवेलेबल है। फिर कौन से पीवाईक्यू ओवरलैप हो रहे हैं, फिर हमारा जो स्मैश मेंस का टेस्ट सीरीज है, वी विल शो यू कि कितने ज्यादा हिट रेशियो है, जो हमने पूछा सिमिलर टॉपिक क्वेश्चन आ गया। फिर समाचार मंथन का हिट रेशियो है, जो करंट अफेयर्स का है, उसमें से कितने क्वेश्चन आ गए, ये लो प्रूफ। ये माइक्रो थीम एनालिसिस है जीएस पेपर 1 का, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है जीएस पेपर के पिछले साल के, जो अभी रिजल्ट आया है। ये माइक्रो थीम्स हैं वो उन क्वेश्चंस की, ठीक है। ये सिलेबस रहा और ये सब्जेक्ट है। ये हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड, ये हमारी स्मैश मींस की टेस्ट सीरीज है। ये एक्चुअल यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये एक्चुअल स्मैश का क्वेश्चन है। आप देख लो, ये प्रेडिक्शन है कि आप बहुत क्लोज आके प्रिपेयर करोगे। उसके बाद ये पीवाईक्यू है। तो आप तीनों चीजें कर रहे हो, आप एक्चुअल पेपर, आपकी टेस्ट सीरीज और उसका पीवाईक्यू। इससे ज्यादा डायमेंशन कवर करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये आपका करंट अफेयर्स है, समाचार मंथन,
ये आपका एक्चुअल GS1 का क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये समाचार मंथन का क्विट इंडिया मूवमेंट का लेक्चर का और नोट्स है। ये क्लाउड बर्स्ट है, ये रहा समाचार। हीट वेव्स है, ये रहा हीट वेव्स। कोई भी उठा लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, ये रहा केओटिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप कुछ भी टॉपिक उठा लो, हमने कुछ भी लीकेज नहीं छोड़ा। अर्बन माइग्रेशन का है, ये लो फीमेल अर्बन माइग्रेशन का लिखा रखा है। तो इतना प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ पढ़ोगे तो कैसे छूटेगा भाई, मतलब तुम्हारा होना ही है सिलेक्शन, मतलब पहले दूसरे अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, बिकॉज आप इतने शार्प पढ़ रहे हो। और जैसे मैंने बोला था मॉडल आंसर्स में आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि मतलब बस रिवीजन के लिए ले लिया है नोट्स मेकिंग, नो, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ओरिजिनल पॉइंट्स कौन से हैं। व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर आपको नहीं पता था ये 6 पॉइंट्स, अगर आपको नहीं पता कि सोशल मोबिलिटी का पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं है, तो आपको ये तुरंत अपने 1 पेज नोट में ये डाल लेना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट शायद दूसरे भूल जाए और आपको एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, राइट, बिकॉज आप ओरिजिनल पॉइंट्स लिख रहे हो। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज फ्लैश नोट्स। फ्लैश नोट्स हमारा नेक्स्ट कॉन्टेंट है, अगेन विच इज फ्रीली अवेलेबल। फ्लैश नोट्स स्टैटिक कॉन्टेंट के लिए है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल चीज सॉल्व करता है फ्लैश नोट्स। आपके पास एक ओरिजिनल सोर्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, you have this book and this book on parliament, ये चैप्टर है, राइट, एंड आपको इसको रैंकर्स के जैसे 1 पेज नोट्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इवेंचुअली यू शुड बी एबल टू डू फॉर मेंस प्रिपरेशन, बट फिर भी इफ देयर इज अ लेस टाइम एंड इफ यू आर अ बिगनर, आपको ये सब नहीं पता है इतना कंटेंट, अभी फ्लैश नोट्स ये करके दे देगा। ये रहा 33 पेजेस फ्रॉम लक्ष्मीकांत, कन्वर्ट इनटू द 4 पेजेस ऑफ फ्लैश नोट्स, फ्रीली अवेलेबल, आपको ये मिल जाएगा। ये प्रोग्राम का भी पार्ट है। नॉट ऑल द फ्लैश नोट्स आर फ्रीली अवेलेबल, अ लॉट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स, बट these फ्लैश नोट्स विल मेक श्योर दैट आप इतना बड़ा कंटेंट को आप डेंस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से ससिंक तरीके से छोटा रिवीजन रेडी नोट्स बना सकते हो। द टॉक ऑफ द टाउन, एक्स फैक्टर, राइट, इससे ज्यादा सिविल्स डेली, अगर सिविल्स डेली की बहुत चीजें कॉपी होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट उठा लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स उठा लेते हैं, पर इससे ज्यादा कोई चीज कॉपी नहीं हुई है। लोग इसको वीडियो में बोल रहे हैं, लोग इसको ORN में अपना एक्सपेक्टर डाल दे रहे हैं, सब डाल दे रहे हैं। हमने लास्ट ईयर जून जुलाई में लॉन्च किया था, ठीक है, वे अहेड ऑफ एनीवन हु क्लेम्स टू बी। दिस वाज डन बाय रैंक 2 एंड सिविल्स डेली टीम, दोनों ने बैठ के फिक्स कर दिया। दिस इज अ लेगेसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपको अपने मेंस के मार्क्स, मतलब आपको हर क्वेश्चन में, देयर आर 20 क्वेश्चन इन ईच पेपर, यू वांट टू इंप्रूव बाय 1.5 मार्क्स ना, इससे बेटर कोई चीज है ही नहीं, गारंटी है। हर साल बहुत सारे रैंकर्स यही लेके जाते हैं। हर पेपर में आपको हर क्वेश्चन में एक नंबर एक्स्ट्रा, हर पेपर में 20 नंबर एक्स्ट्रा, टोटल ऑलमोस्ट 80 मार्क्स से इंप्रूवमेंट हो सकता है आपके GS मेंस के क्वेश्चन में, आंसर्स में, स्कोर में, अगर आप एक्स फैक्टर से पढ़ते हो। एक्स फैक्टर नाम से ही समझ में आता है कि आपके आंसर का एनरिचमेंट हो जाएगा। डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, कमेटीज, जजमेंट, डायग्राम्स, नेम इट, और सारे ओरिजिनल है। ये चीज आपको किसी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं मिलने वाली है, मतलब ये डॉक्यूमेंट तो आप छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। सो एक्स फैक्टर इज अनदर कंटेंट जो आपको 3 साल की फाइट बंद करा देगा कि नहीं भाई इतना नहीं करना है, पहले साल पढ़ो, हाईली एनरिच्ड आंसर और कंटेंट बनाओ, पहले साल में एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो सेम थिंग, कंटेंट की डेप्थ है, डायमेंशंस कवर्ड है, प्रेजेंटेशन है, एंड देन यू हैव कंप्रीहेंसिव PYQ बैक्ड। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसमें PYQ की बैकिंग ना हो, मुझे चाहिए नहीं। वी डोंट वांट कि आप कुछ भी रैंडम करो जो यूपीएससी कभी पूछेगी नहीं। ऐसे सिंपल, वी आस्क्ड अ लॉट ऑफ रैंकर्स यार ये देयर आर सर्टेन टॉपिक्स और थीम्स ऑफ ऐसे व्हिच यूपीएससी कीप्स रिपीटिंग, सो इफ वी गिव यू certain topic or a theme, how will you write the introduction or the conclusion of the essay? These rankers on all these topics, ये बहुत ही recurring topics हैं, ये ऐसे का डॉक्यूमेंट है, उन्होंने हर एक टॉपिक का ना एनेक्डोट लिखा, उसका they wrote the introduction for it and they wrote the reflection for conclusion for this. As a beginner और working professional जिसके पास इतना टाइम नहीं होता कि क्लास जाए ये जाए, आपको exactly पता है कि एक रैंकर, एक ऐसा रैंकर जिसके ऐसे के मार्क्स बहुत हाई आए हैं, वो कैसे लिखता है ये वाला टॉपिक। ऐसे 50-60 ऑलमोस्ट, लुक एट दिस, 50-49 टॉपिक्स, रिकरिंग टॉपिक्स पे जो आए जा रही है, हमने सबके इंट्रोडक्शन और
कंक्लूजन लिख के दिए। मोर देन दैट हमने PYQs कनेक्ट भी कर रखा है, एक्चुअल ऐसे का PYQ लिखा हुआ है। लाइक आई सेड, यहाँ पे हर कुछ PYQ बैक्ड ही है। वी डोंट वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द नॉइज, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, करंट अफेयर्स। ये बहुत ही बड़ा सरदर्द होता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए। कहाँ से पढ़ना है, हिंदू पढ़ूं, ये पढ़ूं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, ये क्लास वो क्लास। मैं आपको सिंपल आंसर देता हूं, देन यू डिसाइड। हर साल हर महीने कुछ ना कुछ समिट होता रहता है, इंटरनेशनल समिट होता रहता है। सम ऑर्गेनाइजेशन विल कॉल इंडिया एटसेट्रा, इंडिया को जाना होता है, ठीक है। इंडिया ने बहुत सारे समिट करे लास्ट ईयर, दिस ईयर बहुत सारे समिट हुए भी हैं, ठीक है। हमने हमारे समाचार मंथन के प्रोग्राम में सिर्फ 3 ही समिट कैप्चर करे हैं। AIXN समिट, ये एक्चुअल समाचार मंथन नोट्स है। बिम्स्टेक समिट एंड यू हैव ब्रिक्स समिट, ये 3 हुए थे, तीनों करे हैं। यूपीएससी ने 3 ही पूछे हैं बस, हमने सिर्फ ये 3 ही कवर किए हैं। वी कुड हैव कवर्ड 30 समिट्स जो होते हैं, लाइक ये चलता रहता है जो, राइट? मतलब समाचार मंथन इज नोन फॉर इट्स प्रिसीजन एंड इट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, एटलीस्ट फॉर द करंट अफेयर्स, राइट? हमको लाइक वी डोंट वांट कि पूरा बल्कि इतना बड़ा दे दें, सब कुछ ही दे दोगे, फिर बोलोगे उसमें से तो आई, ऑफ कोर्स उसमें से आएगा, यू गिव एवरीथिंग। बच्चे के पास उतना टाइम नहीं है ना। आप मतलब मजाक चल रहा है क्या? आप बच्चे का टाइम खराब नहीं कर सकते बाय गिविंग देम दिस मच बल्की थिंग्स एंड देन हैव द ऑडेसिटी कि इसमें से ही आ रहा है। अरे उसमें से तो आएगा ही, मतलब और किस में से आएगा? आपने सब तो दे दिया, राइट? समाचार मंथन इज अबाउट लेस न्यूज, इट्स अबाउट लेस, बट इट्स अबाउट हाई हिट रेशियो। कम पढ़ाएंगे पर जो पढ़ाएंगे आ रहा है। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग, आप प्रीलिम्स में देख सकते हो सिर्फ ये ही 3 सबमिट पूछे हैं यूपीएससी ने। ये समाचार मंथन की एक्चुअल मैगजीन है, हमने सिर्फ 3 ही कवर कर रखे हैं, सारे 3 आए। तो इससे मतलब I don't think I need to say anything else. Hence, this is hands down the best current affairs program for us because हम कुछ भी ऐसा मिस नहीं करेंगे। हमारे जो करंट अफेयर्स न्यूज की पाइपलाइन है, जो यूपीएससी पूछेगा ही यार, मतलब वो तो इट्स लाइक PYQ backed content है। That is how those are the things UPSC wants to test you on. तो we get that, right? So हम questions भी PYQ backed बनाएंगे etc. And this is not कि हमने कुछ, this is not magical in nature. This is pure logic, it's pure rigor कि बच्चे का बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, उसको वही पढ़ाना है भैया जो एग्जाम में आ रहा है। उसको बिल्कुल इधर उधर का ये सबमिट वो सबमिट एंड खुद का कुछ कि मेरे को इतना आता है उतना आता है नहीं, चुपचाप एग्जाम निकालो, फिर देखते रहना, अपना ज्ञान बढ़ाते रहना। बट अभी के लिए प्लीज एग्जाम निकालो, स्पेशली अगर आप बिगनर हो और वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। दिस वाज समाचार मंथन। समाचार मंथन इज अ वीकली प्रोग्राम बाय द वे। वी गिव यू 30 ऑलमोस्ट 30 पेजेस ऑफ नोट्स एंड देन 2 क्लासेस होती है सैटरडे संडे, टोटल 5 आवर्स। प्रीलिम्स का और मेंस का टेस्ट होता है। प्रीलिम्स का मंथ के एंड में 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है ओनली ऑन करंट अफेयर्स। मेंस का वीकली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स पे, राइट? सो और जब तक आपके 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कवर नहीं हो जाते ना, मतलब देयर इज नो पॉइंट इतना ज्यादा आप हेविली करंट अफेयर्स पे मतलब रिलाई करो। सो इनिशियली शुरू के फाउंडेशन में आपने जो भी माइक्रो थीम कवर कर रखी है स्टैटिक की, वो आपको काफी हेल्प करेगी करंट अफेयर्स समझने में। नहीं तो आप रैंडम डीप्रायोरिटाइज्ड चीजें भी पढ़ोगे ना, तो फिर करंट अफेयर्स भी समझ में आएगा नहीं। यू कैन सी हाउ इट वर्क्स इन टेंडम विथ ईच अदर। अगर आप माइक्रो थीम बेस्ड रूथलेसली प्रायोरिटाइज प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको 2-3 महीने में समझ में आ जाएगा कि यार सही जा रही है प्रिपरेशन। दिस इज अनदर इनोवेशन दैट वी डिड, बर्निंग इशू, राइट? होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। यूपीएससी ना, लेट्स से दिस टॉपिक बुलडोजर जस्टिस, राइट? यूपीएससी मतलब दे आर नॉट बाउंड कि वो ये टॉपिक GS1 में ही पूछेंगे या 2 में पूछेंगे, 3 में। मतलब सीरियसली यू कैन सी ये इंडियन सोसाइटी में भी पूछा जा सकता है, ये टॉपिक पॉलिटी गवर्नेंस में भी, राइट्स में भी पूछा जा सकता है, ये टॉपिक इकोनॉमी सिक्योरिटी में भी पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट में, ये टॉपिक इथिक्स इंटीग्रिटी में भी पूछा जा सकता है, सिटीजन चार्टर में। मतलब द थिंग इज पब्लिक इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और वो सब में आपको ना, when you read this you will realize कि अच्छा ये तो मोस्टली GS2 में आएगा, बट guess what, if it appears in GS4, आपके जो आंसर्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, they are mostly towards GS2, तो नंबर नहीं मिलेगा, राइट? So you have to make sure that whenever the topic comes, you prepare
in a way that you have covered it from all the angles, which is GS 1, 2, 3, 4, from all the angles. This problem, exactly this problem, is solved by burning issue. कोई नहीं करता ये. नो सोच, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये प्रॉब्लम है. बस छापते जाओ मैगजीन, ये वो. मत करो यार, मतलब हो गया. मतलब सीरियसली इतना टाइम खराब मत करो. चुपचाप अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, सब कर दिया है हमने. ये फ्रीली अवेलेबल है बाय द वे. आप ORN में हो तो लाइक मिल जाएगा. आस्क फॉर बर्निंग इशू, या वेबसाइट से डाउनलोड कर लो PDF. मतलब अच्छे से पढ़ लो, बस 1-2 साल के लिए अच्छे से पढ़ लो. फालतू रैंडम नॉइज में मत पढ़ो. वन टॉपिक कवर्ड फ्रॉम ऑल GS4 पेपर. कहाँ किसने कराया यार? ये कोई नहीं करा रहा है, फालतू की चीजें करा रहे हैं. सेकेंड, आपको पूरा फ्लो डायग्राम मिल जाएगा. सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल यही है. शॉर्ट नोट्स है यार. एक्सपेंड तो आप कर ही लोगे, इतनी तो मैच्योरिटी आई जाती है 5-6 महीने 8 महीने पढ़ के. एक्सपेंड कर लोगे, सेंटेंस नहीं बना लोगे आप इसका, तो ये तो आ ही जाएगा. आपको उसे याद होनी चाहिए यार. फटाफट मेरे को याद हो जाए, मैं लिख दूं और एक्सपेंड कर दूंगा पॉइंट. तो फुल सर्कल अप्रोच की सारे एंगल से ही कुछ भी पूछे ना UPSC, आपको मतलब फटाफट आपको आ जाना चाहिए आंसर. ये क्वाड है, ये भी सेम ही चीज है. एक आर्टिकल है बट कवर्ड फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव. तो मतलब ये यहाँ भी पूछा जा सकता है, इंडो पैसिफिक रीजन में, IR में भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, एथिक्स में भी, कोऑपरेशन वगैरह, राइट. तो सेम टॉपिक बट इट कवर्ड फ्रॉम ऑल द GS पेपर एंगल. अब UPSC कहीं से भी पूछ ले, आप रेडी हो, आपको कोई टेंशन नहीं है. पूछ लो, जहां से पूछना पूछ लो. अगर आपने बर्निंग इशू पढ़ी, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप रेडी हो. ठीक है, आपने वो बल्कि चक्करों में नहीं पढ़े हो ना. आपकी प्रिपरेशन बहुत शार्प है, टू द पॉइंट है, सब कुछ लिखा है, कुछ इसके आगे कुछ नहीं चाहिए आपको. दैट्स इट. 2 पेज, क्वाड खत्म. पूछ ले अभी UPSC जो पूछना, आप रेडी हो क्वाड में. प्रीलिम, ये वो मेंस का था. सेम बर्निंग इशू में प्रीलिम्स का भी होता है लास्ट में. प्रीलिम्स में ना बहुत ही फैक्ट्स, डेटा, कॉन्सेप्ट और ये सब पूछते हैं. मतलब समथिंग दैट यू हैव टू रिलाई ऑन योर मेमोरी. तो इसमें रिवीजन बहुत लगेगा, तो इसलिए हमने एक जगह ही सारा कुछ डाल दिया है. सो यू कैन सी व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, ये सब मतलब वेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस. उस मंथ का, जब जैसे सितंबर का था, बर्निंग इशू हर मंथ आता है, सम मंथली थिंग. सो व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, बहुत ही फैक्चुअल है. नाम, की फिगर्स, ये देखो सारे नेम्स, डेट्स, प्लेसेस, राइट. तो ये सब इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए आपको. प्रीलिम्स में कभी भी पूछ लेते हैं. अब इसके बिना आप घूमते रहोगे कहीं भी, पता नहीं कहीं लिखा है कि नहीं, कुछ शॉर्ट नोट्स में कहीं लिखा है कि नहीं, एक्सेट्रा, राइट. तो घूमते रहोगे, कोई पॉइंट नहीं है. सो मेक श्योर दैट एक जगह पे है, सब फ्रीली अवेलेबल है. इसको ऐसे ही करना है. प्रीलिम्स टिडबिट्स, एटॉमिक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, क्विकली रिवाइज कर लो, इजिली रिवाइज कर लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह पे होने चाहिए. ये देखो सब लिखा है, स्लो ग्रोथ, इनएफिशिएंसी, सब लिखा है. एक न्यूज आई थी है, उसके बारे में सब लिखा हुआ है. सिंगल सेंटेंसेस हैं. इस बस एक्सपेंड आप कर लोगे, आपको पता है, बट ये एक जगह होनी चाहिए. एग्जाम के 10 दिन पहले फटाफट रिवाइज कर लो. यही है, ये एफिशिएंट प्रिपरेशन ऐसी दिखती है, राइट. सो डीपली रिसर्च, ओरिजिनल एंड एवरीथिंग इज PYQ बैक्ड. दिस कंटेंट इज फॉर यू. ये QR कोड है, एज आई प्रॉमिस्ड. कर लो भाई, इसको डाउनलोड कर लो, अपनी टेबल पे रखो. अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो आप इसको स्कैन करो. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी क्लिक करके ले सकते हो. सब फ्री है. ठीक है, इसलिए सब कॉपी भी हो चुका है. सारे इंस्टीट्यूट ने कॉपी कर रखा है. माइक्रो थीम, एक्सपेक्टर, सब कॉपी हो गया है, अपने अपने नाम से चला रखा है. स्टार्टर किट, आप इसको स्कैन करोगे, आपको इसका स्टार्टर किट मिलेगा. सारा का सारा कंटेंट आप यूज करो. बिगनर हो तो प्लीज ये आपको यूज करना है. डाउनलोड करके रखो. अगर आप दिल्ली में हो, ORN में जाइए, ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहां पे आपको मिल जाएंगी सारी बुक्स. सब कुछ मिल जाएगा अपडेटेड. ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटोरशिप. मेंटोरशिप का प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को पता नहीं होता है बिगनर में, तो उनको लगता है कि कोई डाउट सॉल्व कर देगा ना तो वो मेंटोरशिप है. वो नहीं होता, उससे कुछ होना नहीं है. वो तो आप GPT से पूछ लो, यूट्यूब से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट. उससे भी पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ प्लानिंग करोगे पर डेली अकाउंटेबिलिटी या वीकली अकाउंटेबिलिटी नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होना.
आप सिर्फ डेली का प्लान करोगे बट आपको ओवरऑल मैक्रो नहीं पता है कि भाई किस महीने में क्या करने वाला हूँ, कब खत्म होएगा, पढ़ूंगा कैसे, स्ट्रेटेजी क्या है, तो भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने भी ये सेशन स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करा है कि आपकी क्या, रिमेंबर द टाइम टेबल आई शोड यू इन द बिगनिंग, राइट, कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या डेली वीकली होना चाहिए, कितना स्लॉट्स होने चाहिए 4 दिन में, 6 दिन में, राइट। फेजेस ऑफ प्रिपरेशन कैसे होगा, उसमें ट्रांजिशन कैसे करोगे, मैक्रो टाइमलाइन जो मैंने आपको शुरू में बताई, उसके बाद आप डेली चीजें ब्रेक डाउन करोगे, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो एक एस्पायरेंट अपनी पढ़ाई में ये इनपुट्स दे रहा है, वो 50 समाचार मंथन के टेस्ट लिख रहा है, 25 प्रीलिम्स के टेस्ट लिख रहा है, स्मैश मेंस टेस्ट ऐसे लिख रहा है, ऑलमोस्ट 100+ आवर्स फीडबैक मेंटर्स के साथ बैठ के ले रहा है अपनी कॉपीज पे, ये वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन ले रहा है अपने मेंटर के साथ बैठ के, प्रिसाइज रेफरेंस मटेरियल एंड नोट्स हैं जो मैंने बताया आपको, पीवाईक्यू बैक्ड है, माइक्रो थीम्स है, ऐसे के एनेक्डोट्स हैं, GS 1 2 3 4 के सैम्पल क्वेश्चंस एंड आंसर मॉडल आंसर्स हैं, फ्लैश नोट्स, एटॉमिक नोट्स, ये सारे इनोवेशन जो सिविल इंजीनियरिंग कर रखे हैं, सब प्रिसाइज मटेरियल एंड नोट्स हैं। इंटेलिजेंट एंड हाई, मतलब हार्ड वर्क तो है, इंटेलिजेंट फोकस ऑन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स, अगेन माइक्रो थीम्स, ट्रस्ट इन द मेंटर, एंड ऑफ कोर्स सबको लक तो लगता ही है, लाइक यू ऑलवेज नीड लक। जब एक बच्चे के ये इनपुट है तो उसका आउटपुट ये है। फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक 2 अनिमेश प्रधान, ही वाज अ पार्ट ऑफ आवर यूएपी मेंटरशिप प्रोग्राम लास्ट ईयर, राइट। ये उनके मार्क्स हैं, लुक एट द मार्क्स, अनपैरेलल मार्क्स in GS, even in optional, but focus on this. Focus on this. Almost 470+ marks. लोगों के 430 क्रॉस नहीं होते यार, 470+ मार्क्स है। आपको लगता है ये सिर्फ मेंटरशिप से हो जाएगा? इट टेक्स कंटेंट प्लस मेंटरशिप प्लस स्ट्रेटेजी। अभी भी नहीं है भरोसा? रीड इट। Last 2 years took him 2 years of journey. Extremely grateful for being the biggest contributor to his success. समाचार मंथन, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज, इवेल्युएशन एंड मेंटर, चारों प्लेयर बता दिए। असेसमेंट है, स्ट्रेटेजी है, कंटेंट है, समाचार मंथन है और मेंटरशिप है। खुद लिख रहा है ना वो तो। 24 एज, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड रैंक, एंड बाय द वे ही वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, ही वाज वर्किंग। ये दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ हिज डेली टाइम टेबल जो उसके मेंटर ने उसको दिया था। यू कैन सी, आई डोंट वांट टू गो थ्रू एवरीथिंग, बट लुक एट द डिटेल। टेस्ट रिवीजन तो सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब लिखा हुआ है उसमें कि कहाँ से क्या पढ़ना है, स्लॉटेड है, आफ्टरनून, ऑप्शनल, मेंस आंसर राइट, सब स्लॉटेड है। ये है टू, आई विल शो यू वन मोर रैंकर का टाइम टेबल। दिस इज एक्चुअली थोड़ा अनिमेश के पहले वाला। दिस रैंकर गॉट रैंक बिफोर अनिमेश, लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर, बट लुक एट, ये सारा कुछ फेज में डिवाइडेड है। अगेन फेज 2, फेज 1, टारगेट देखो एनसीईआरटी से लेके यहाँ तक, मेंटर्स के ये कमेंट है, फोकस किस पे करना है, जब आप ये पढ़ रहे हो तो किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, सोर्स कौन से, सब लिख के दिया मेंटर ने, सब्जेक्ट क्या है, स्टेटस पूछा है, डन डन डन, ये कर लिया है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी इनग्रेन्ड है सिस्टम में। मेंटर के कॉल लॉग्स हैं कि जब इन्होंने ये करा होगा तो जब मेंटर ने कॉल करा होगा तो क्या डिस्कस हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। 80% ऑफ द टारगेट असाइंड अचीव्ड हो गया है। बेसिक टेस्ट का डिस्कशन किया है मेंटर ने इनके साथ, जो उन्होंने हिस्ट्री का बेसिक टेस्ट दिया था। आई कैन कीप गोइंग, ये सब लिखा हुआ है, राइट। ये देखो इंटरवेंशंस, अब भाई जब आप टेस्ट दोगे there must be some gaps and problems, right? What are the interventions that mentor has taken, right? So no need to memorize NCRTs, focus only on highlighting keywords, get some intervention mentor is giving on everything. What should be the focus, what should be done, not done, how to do it, etc., right? These are the suggestions or recommendations from the mentor. This is the level of planning आपको भी चाहिए। अगर आपको ये सब पहले अटेम्प्ट वाले, सॉल्व वन अटेम्प्ट, राइट।
आप एक क्लासरूम में जाते हो, अगर आप क्लास जाना बंद कर दोगे तो नो वन केयर्स। यहाँ पे हमारा सिस्टम में लीकेज नहीं है, हम आपको ऑफ ट्रैक होने ही नहीं देंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई पढ़ना ही है, हम छोड़ेंगे ही नहीं। मेंटर्स के कॉल्स भी दिखाता हूँ, कितने डिफरेंट टाइप्स के कॉल्स होते हैं। समाचार मंथन का डिस्कशन एक एक तरीके का कॉल होता है, पोस्ट टेस्ट प्रीलिम्स का दूसरे तरीके का होता है, मेंस का पोस्ट टेस्ट डिस्कशन अगर मेंटर के आमने सामने बैठ के करना है तीसरे तरीके का कॉल है, सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना है फोर्थ काइंड ऑफ कॉल, टारगेट असाइन करना था और डिस्कस करना था फिफ्थ काइंड ऑफ कॉल, पीवाईक्यू का डिस्कशन करना था सिक्स्थ काइंड ऑफ कॉल्स, लाइफ पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ब्रेक चाहिए, सम काइंड ऑफ जेनरिक फील गुड डिस्कशन तो थेरेपी बोलते हैं, सो थेरेपी काइंड ऑफ अ कॉल, डीएनपी और डाउट सेशंस देखना है एर्थ काइंड ऑफ कॉल, एंड आई कैन कीप गोइंग। ये तो कुछ ही है मोस्ट रिकरिंग लिखे हुए 8 तरीके के जो मेंटरशिप बोल देते हैं ना, बस कॉल कर लिया डाउट पूछ लिया, वो बकवास नहीं करनी है। जब बच्चे का पहली बार में एग्जाम निकालना होता है ना, तो इतने नुआंस लेवल पे मेंटर को बैठना होता है, जो हम करते हैं हम ही कर सकते हैं। और बिकॉज वी आर द वन हु ब्रॉट आउट मेंटरशिप इन 2017-18, और किसी से नहीं हो रहा ये सब बकवास कि बस हाँ बेटा ये वाला डाउट है, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, टाइम वेस्ट मत करो यार। एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, आज मैं किस बारे में बात करूं, उतनी केयर के साथ उतना अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करनी होती है। ये कुछ बकवास में फंसा के फेक होप दे के ऐसे नहीं निकलता है एग्जाम। ये हमारे कॉल लॉग है, ये सब कैप्चर होता है। ये अगेन कॉल लॉग है, एक्चुअल मेंटर का डैशबोर्ड है, ऐसे दिखता है। सो ये सारे बच्चे हैं, राइट। अगेन यू सी, आई शो यू Maheshwar Reddy is a mentee, and ये मेंटर का कमेंट है कि टेस्ट वाज गुड, मैनी क्वेश्चन इज करेक्ट, डिडक्शन सही जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिया इन्होंने या करने के लिए बोला है, एंड देन विद इन अ वीक 1857 से 47 तक इनको कवर करने के लिए बोला है, राइट। सो अगर आप यहाँ कहीं भी क्लिक करोगे तो ये सब आपको दिख जाएगा कि हर बच्चे के बारे में किस कॉल पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप एक चीज ध्यान में रखो, आपको जहां से मेंटरशिप लेना है आप वहां से लो, आप बस एक चीज ध्यान रखो, आपको ना इस ऑरा में नहीं पढ़ना है कि मेंटर बहुत महान होना चाहिए, उसकी सर्विस में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, उसका 6 इंटरव्यू दिया होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के कोच को उठा के देखो, वो उनसे बड़े नहीं होते, ऐसे नहीं होता है। अगर आप इतनी बेसिक फैक्ट नहीं समझ सकते तो मैं आई डोंट नो हाउ टू हेल्प, राइट। आप प्लीज समझो, मेंटरशिप इज अ प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट डे ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मेंटर की जरूरत क्या है, और वर्स्ट डेज बैड डेज आर इनएविटेबल ना, वो तो होना ही है। उस दिन आपको पता चलता है कि मेंटर की जरूरत, मेंटर की इंपॉर्टेंस कितनी हाई होती है। आई गिव यू अ वेरी small example. AI to Animesh was going through something in life, in lot of other rankers. अगर आप पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर सकते मेंटर के जैसे, अगर आप उनको ठीक से पढ़ा नहीं सकते, उनको वापस नहीं ला सकते, तो क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट करने की कोई पॉइंट नहीं है ना। इट इज द प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट डे ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि जब सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों चाहिए मेंटर, तो आप संभाल ही लोगे यार, राइट। इसलिए आपको जो जरूरत है उतनी यूनिकनेस के साथ मेंटरशिप कस्टमाइज होनी चाहिए, राइट। और सिर्फ उससे कुछ नहीं होता कि बस फोन लगा लिया कर लिया। हमारा आर कंटेंट मेक्स मेंटरशिप 10x बेटर, राइट। एंड सारा कंटेंट जो मैंने आपको दिखा दिया है, राइट। सो जब आपका सॉलिड कंटेंट होगा, जिस स्ट्रेटेजी टॉप नॉच है, और मेंटर आपके साथ थ्रू एंड थ्रू है, इतने नुआंस लेवल पे लगा हुआ है, छोड़ेगा नहीं, पढ़ा के ही छोड़ूंगा मैं, टेस्ट लिखवा के ही छोड़ेंगे हम, नहीं पीछे पड़ जाएंगे। आप कहाँ हो, मतलब लिखना पड़ेगा टेस्ट भाई, आप मतलब एग्जाम तो निकलवा के ही छोड़ेंगे 1-2 अटेम्प्ट में। तब कैसे नहीं आएगी रिजल्ट, कैसे नहीं आएगा रैंक? द रिजल्ट इज अ रैंक इन मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। जब आपका कंटेंट इतना टॉप नॉच हो, सारा का सारा पीवाईक्यू बैक्ड हो, फ्रीली अवेलेबल है बाय द वे, जब आपकी मेंटरशिप इतने नुआंस लेवल पे कैप्चर हो रही हो, तो यार मतलब कैसे नहीं आएगी रैंक, राइट। सेम चीज है, ये फिर से मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। ये फेजेस में डिवाइडेड है आपका पूरा मेंटरशिप। ये फर्स्ट फेज है, बुनियाद फेज है, ये सेकंड फेज है, ये थर्ड फेज है, प्री प्रीलिम्स, और ये पोस्ट प्रीलिम्स। हर 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 फेज को हमने डिवाइड कर रखा है कि किस चीज में स्ट्रगल होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है,
कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड फेज में कहाँ पे हो सकती है, ट्रांजिशन कैसे करना होता है एक फेज से एक फेज, कहाँ पे टेस्ट डालने हैं, हर टेस्ट के बाद कैसे नोट्स एनरिच कराने हैं, एक्स फैक्टर को कैसे यूज करवाना है, पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज, जो भी नोट्स बनाए उनका कंसोलिडेशन, अगर कोई मोटिवेशन या पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए चाहिए तो वो है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, राइट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑप्शनल और जीएस का बैलेंस, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है हमने। मुझे मतलब आई एम सरप्राइज्ड दैट व्हेन आई लुक एट अदर मेंटरशिप प्रोग्राम, मुझे बड़ा अजीब ही लगता है कि लोग इतना कैसे गैप छोड़ देते हैं कि बस 2-4 फोन कर दिया, मेंटरशिप बोल दिया। अरे भैया, रियल मेंटरशिप में जान निकल जाती है मेंटर की, लाइक दिस इज व्हाट इट टेक्स। मतलब without this there is no point that you should be enrolling or going for any mentorship program, because you have to ask a very simple question that unless I get this level of system, this level of content and this level of strategy, like unless you can see that, नहीं जाना है उस mentorship program में, simple कर लो। These are the question, and if you find that, go there, wherever it is। मतलब पर इतना level पे तो आपकी expectation होनी चाहिए। These are the rankers saying things about the mentorship program that they were part of in Civils Delhi, right? Pawan Datta, AR48, rank 2, etc. Again, this is how mentorship ka dashboard looks like, right? This is only mentor can see, but the point is that we capture every single detail of where you are in the journey, right? It's a very busy department. बिल्कुल दिल पे लेते हैं हम मेंटरशिप, बिल्कुल दिल से करते हैं, राइट? अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है बच्चे को इधर उधर फंसा के रखने में, फेक मोटिवेशन देने में और उनके 2-4 साल बर्बाद करने में, कोई पॉइंट नहीं है। सम गुड वर्ड्स, एंड व्हेन वी वर्क विद देम सो क्लोजली, इतने इतने एम्पैथी के साथ, इतने ध्यान से, केयर से, वी रिसीव ऑल दीज गुड वर्ड्स फ्रॉम देम, राइट? बिकॉज ये सब करने का पॉइंट ही वही है यार, एक बच्चे को सिविल सर्वेंट बनना है, अगर हम उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उससे बेस्ट खुशी और कुछ है नहीं, उससे बेस्ट चीज, उस फीलिंग कुछ है नहीं। वो बहुत बड़ी बात है किसी भी मेंटर के लिए, टीचर के लिए। आप एक चीज ध्यान रखो, आप कोई भी कंटेंट पढ़ लो, पर अगर आप आंसर नहीं लिख सकते, मार्क्स नहीं ला सकते, तो कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए ना हमारे प्रोग्राम का नाम ही है यूएपी। इसका जो ए है ना, वो असेसमेंट है, अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे जब आपकी मेंटरशिप शुरू होगी तो सबसे पहले हर एक टॉपिक के लिए जो भी कोर बुक होगी, सिलेबस होगा, उसको डिवाइड कर रखा है ना माइक्रो थीम में। हर एक स्मॉल सबसेट ऑफ सिलेबस या टॉपिक के लिए एक मेंटरशिप टेस्ट होता है। जितना साइन करेंगे आपको, उसका टेस्ट होगा। उस टेस्ट पे मेंटर बैठेगा आपके सामने सामने या जूम कॉल पे, वीडियो कॉल पे, आपसे डिस्कस करेगा कि भैया कहाँ पे गैप आ रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर आपको इंटरवेंशन देगा और आपके पीछे लगा रहेगा जब तक आप इंप्रूव करके नहीं दोगे। कहाँ छुपोगे आप? करके ही मानेंगे। लाइक दैट्स हाउ वी ऑपरेट। आपने जिस दिन साइन अप कर लिया, हम लगे हुए हैं आपके पीछे कि भैया अब एग्जाम निकाल के ही देना है, आईएएस आईपीएस बनना ही है। अब वीकली करंट अफेयर्स, समाचार मंथन मैंने आपको बताया, डोमिनेट प्रीलिम्स के टेस्ट, ये प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए स्मैश मेंस है। कुछ छूट रहा है? जीएस, प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स और आपका पूरा सिलेबस खत्म। नॉट दैट, आप इस सारे चीजों पे रिगरसली असेस हो रहे हो। छोड़ने ही नहीं देंगे आपको टेस्ट, लिखवा के रहेगा मेंटर कि लिखना ही है भैया। पीछे पड़े फोन पे फोन बजाएंगे, ईमेल पे ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, पर टेस्ट तो लिखवा के रहेंगे। जिससे आपको पता चले कि भैया अगर आपने पिछले 10 दिन नहीं पढ़ा है ना, तो आपके नंबर भी नहीं आ रहे हैं। तो जो आपका सपना था आईएएस बनने का, वो धीरे धीरे अब धुंधला हो रहा है। तो वो रियलिटी में मेंटर आपको लेके आएगा कि आ जाओ वापस करते हैं यार, 6-8-10 महीने बचे, 1.5 साल बचा है, निकालते हैं, फोड़ते हैं एग्जाम। इसलिए रिगरसली असेसमेंट, और हर असेसमेंट, हर टेस्ट के बाद मेंटर बैठ के वो डिस्कशन करेगा, जिसको पीटीडी बोलते हैं, पोस्ट टेस्ट डिस्कशन। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम। ये नो वन डज दिस। एक भी मेंटरशिप प्रोग्राम में यू विल नॉट फाइंड दिस। दिस इज द कोर ऑफ एनी मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके बिना तो क्या ही मेंटरशिप है यार। इसके इमेजिन करो आपने कोई टेस्ट ही नहीं दिया, अब बैठे हो मेंटर के सामने, कर लो लाइफ की बातें, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हो। भाई एक्चुअल में तो आपको अपने मार्क्स और टेस्ट और आंसर्स डिस्कस करने चाहिए ना। वो उसके बाद अगर मेंटर जो कमेंट दे रहा है वो मेंटरशिप है। ऐसे तो फिर क्या ही है, राइट? सो
सिंपल 5 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले ओरिएंटेशन कॉल हो सबसे पहले ओरिएंटेशन कॉल होगा, जिसमें आपकी सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने शुरू में बताया था, टाइम टेबल, उस जैसे कि आप रैंडम चीजें ना करो जिससे 5-6 अटेम्प्ट लग जाते हैं आपको निकालने में एग्जाम, वो सब नहीं करने। उसके बाद आपके टारगेट असाइन होंगे उस हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए। उसके बाद आपके नोट्स बनने चालू होंगे जो कि एक्स फैक्टर से एनरिच होंगे, फ्लैश नोट्स भी होंगे, एटॉमिक नोट्स होंगे, समाचार मंथन के करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिलेंगे, बर्निंग इशू है, उसके बाद आपका 1 पेजर नोट्स, इन सबको मिला के 1 पेजर नोट्स, और स्टैटिक का भी जो भी आप पढ़ाई करोगे 1 पेजर नोट्स में आ जाएगा। ये आपके बनते जा रहे हैं हर माइक्रो थीम के लिए, ठीक है। ये सेपरेट एक्सरसाइज बेचारे बच्चे को अलग से करनी पड़ती है, हम बनवा के हम लग के बनवाएंगे आपके। फिर आता है टेस्ट, हर टॉपिक के आप टेस्ट लिखोगे, अभी बताया मैंने आपको, प्रीलिम्स में सब कुछ, और मेंटरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के बाद आता है पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, ये है मेन चीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है मेंटर। यहाँ पे भी है बट सबसे ज्यादा 80% ऑफ द वैल्यू पीटीडी में है। आप टेस्ट ही नहीं लिखोगे तो कैसे मेंटरशिप होगा यार, मतलब कोई मतलब। और आधे बच्चे तो टेस्ट से ही डर जाते हैं, सर अभी नहीं, अभी सिलेबस नहीं किया, कैसे लिखे आंसर, ये वो आप वो अलग ही डिल्यूजन में चले जाते हैं। तो वो सब नहीं करना है, यहाँ पे पीछे लग के करवाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है पोस्ट डिस्कशन की, जो मेंटर वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। आप मेंटर के सामने बैठ के सारे गैप्स डिस्कस करते हो, सब आइडेंटिफाई करते हो कहाँ पे प्रॉब्लम है। रियल मेंटरशिप विथ रियल आउटकम्स, मेंटरशिप तो सभी, ये भी एक कॉपी कर रखा है लोगों ने सिविल्स डेली से काफी, ठीक है। सो हियर इज अ थिंग, हर मेंटरशिप का ना एक नुआंस है, ये ना कोई डाउट सॉल्विंग नहीं है मेंटरशिप। फॉल्ट फाइंडिंग, कोर्स करेक्शन, 2 वर्ड याद रखने। फॉल्ट फाइंडिंग, कहां पे प्रॉब्लम है बच्चे को, फॉल्ट, गलतियां कहां कर रहे हैं, ढूंढो, इंटरवेंशन दो, सॉल्यूशन दो, और कोर्स करेक्ट करो धीरे धीरे, वापस ट्रैक पे आ जाए बच्चा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉल्ट हो सकता है। हिस्ट्री में सर ये समझा दीजिए, वो समझा दीजिए, भाई यूट्यूब पे क्या नहीं है यार, तुमको कैसे प्रॉब्लम हो सकती है सब्जेक्ट में, आई अंडरस्टैंड कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, पूछ लो। बट वो भी तो कोई रिकरिंग चीज नहीं है ना, एक बार समझ लोगे हो जाएगा, फिर तो मेंटर की, फिर तो मेंटर का कोई मतलब, इट्स द मोस्ट रिप्लेसेबल थिंग एवर। फॉल्ट फाइंडिंग, कोर्स करेक्शन, एक थर्ड पर्सन के जैसे मेंटर आपको दूर से देख सकता है कि यार कहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कोर्स करेक्ट कर दो, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको 2-3 अटेम्प्ट बाद रियलाइज होगा। दैट इज द रियल मेंटरशिप, फर्स्ट। सेकेंड, रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन, माइक्रो थीम्स, पीवाईक्यू कंटेंट। 30 मिनट तक तो मैं यही समझा रहा था ना आपको। आपके मेंटरशिप में अगर ये नहीं है, मतलब हाउ डू आई से, इट्स लाइक वेस्ट ऑफ योर टाइम, मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। टेसिट नॉलेज ऑफ रैंकर्स, क्या होता है ना, जैसे रैंक 2 के बारे में बता दूं, वो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन बच्चा था अनिमेश, 50 टेस्ट लिख रहा है यार वो मेंस के, तो समाचार मंथन के, कौन मतलब रो देते हैं बच्चे, इतना टेस्ट तो लिखते ही नहीं यार कोई। अब उसके लिए डिसिप्लिन इनग्रेन्ड है, बहुत ही ऑब्वियस चीज है, पर आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है डिसिप्लिन रहना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब वो उसका टेसिट नॉलेज है, वो उसका एडवांटेज है। ऐसी कौन सी चीज है जो रैंकर के लिए ऑब्वियस है बट 99% एस्पायरेंट्स के लिए वो बहुत कठिन चीज है। ऐसी चीजें मेंटर अगर आपको लाके बार बार लाके नहीं बता देता, हैबिचुअल नहीं करा सकता कि यार देख XYZ, तेरा ना ये एज है, तेरे में ना ये स्ट्रेंथ है, इसको भूलना नहीं है, इसको नीचे नहीं जाने देना, ये वीकनेस है, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ये है, इसको नीचे नहीं जाने देना, कुछ भी हो सकता है। वो एक दूर से बैठ के इंसानी बार बार जो आपके साथ 1.5 साल से ना, वो बता सकता है। तो और जो रैंकर्स के लिए काम किया है ना, उसी मेंटर ने प्रीवियस ईयर जो रैंकर निकाले हैं, जैसे अनिमेश के रैंकर है, जैसे आदित्य पांडे के रैंकर है, राइट, पवन दत्ता के रैंक मेंटर्स है, इन मेंटर्स को पता है कि यार what has worked actually for those rankers, उन्होंने 1.5 साल तक जर्नी देखी है। that knowledge which was obvious to those rankers should be made available to you, right? that is also the third point। नहीं तो बैठ के खुद का बना बनाया अधपका सा ज्ञान दे दिया है मेंटर ने, ठीक है, खुद को एग्जाम दिए पता नहीं 10 साल हो गए, खुद के जीएस मार्क्स बताए जा रहे हैं, मेरे जीएस में टॉपर था, मैं ऑप्शनल में ये था, अरे भैया क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा एग्जाम निकाल दो भाई, आपके मार्क्स आपको मुबारक, ठीक है।
आप मुझे ये समझाओ ना यार कि यार आपने जिन बच्चों को रैंकर बनाया है उनके लिए क्या काम करा है, और मेरे में ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी बात करो ना यार, क्या मेरे मार्क्स ये, ठीक, टॉक अबाउट द किड राइट, जो जो बच्चा पढ़ने आया उसके बारे में बात करो। आप अपने ही बखान करे जा रहे हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे मतलब मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट, इससे ज्यादा कोई भी बोल रहा है ना तो आपको फंसा के रखा हुआ है प्रिपरेशन में। बिल्कुल भाग जाओ वहां से, दौड़ लगा दो, आज 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 भाग जाओ। 2 अटेम्प्ट लगता है, आप किसी भी रैंकर से भी पूछ के आओ आप, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है, जिनका 4th 5th में भी हुआ है ना, वो आपको सेकंड सेम ब्रेथ में ये भी बोल देंगे सेकंड सेंटेंस में कि मैंने 4 गलती पहले अटेम्प्ट में की थी, ये नहीं करता ना दूसरे अटेम्प्ट में तो मेरा हो जाता। बस वो उन्होंने, और वो करना नहीं है आपको, ये सेशन ही उस पे कि आपको कैसे 3-4 अटेम्प्ट तक नहीं फंसना है। शुरू में आप ये प्रीएम्प्ट कर दो ना, ये सब गलतियां नहीं करनी है तो आपका हो जाएगा सेकंड फर्स्ट में। 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम, हम सिविल्स डेली में सिर्फ 2 अटेम्प्ट की फाइट करते हैं, आपका निकलवाना ही है इस इन 2 में। इसलिए पूरी प्रिपरेशन जो है फेजेस में डिवाइड है, जल्दी से रैंप अप कराते हैं। एनसीईआरटी का मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐसे नहीं, पेज बाय पेज जल्दी जल्दी खत्म करना है। फीडबैक कंटिन्यूसली मिलता रहता है, पूरी प्रिपरेशन माइलस्टोन में डिवाइडेड है। नो प्रोग्रेस मिराज, चले गए हैं क्लास में बैठे हैं जस्ट बिकॉज आप पॉलिटी की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू अटेंड लॉट ऑफ क्लासेस, लॉट ऑफ ब्ला ब्ला व्हाटएवर, आपको लगता है प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अरे भाई वो मिराज है, नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, नहीं आ रहे तो क्या प्रॉब्लम है ये पता है। ये मेंटर्स भी करते हैं, बहुत सारे मेंटर्स भी करते हैं, आपको बस बोल देंगे हाँ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। फेक होप, फेक होप। अरे मेरा हो गया था, मेरे तो जीएस में टॉपर था, मेरा तो ये, मैं तो बहुत, मेरे को पॉलिटी का बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ। आप भाई बच्चे की बात करो। टू ऑल द मेंटर्स आउट देयर, आई जस्ट वांट टू टेल यू, फोकस ऑन द किड प्लीज। उसका करियर, उसका टाइम खराब क्यों कर रहे हो आप? और बच्चों को भी, आपको भी ना ये ध्यान रखना है कि आप यार आस्क हार्ड क्वेश्चन की भैया क्या आप अपना क्या बता रहे हो, अपना आप क्या बखान कर रहे हो, मेरे बारे में बात करो, मेरी जर्नी तो बताओ कहाँ हूं मैं। ओनली रियल आउटकम्स, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रियल आउटकम? रैंक, आपका रैंक आना चाहिए, दैट इज द आउटकम। आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट मोर वेरिएबल्स टू सक्सेस, सिर्फ पढ़ाई मेंटरशिप से नहीं होता, बट आप सबसे ज्यादा वेरिएबल कंट्रोल करो ना भाई। स्ट्रेटेजी सही रखो, कंटेंट टॉप नॉच रखो, पीवाईक्यू बैक, और मेंटरशिप को इतना शार्प रखो और अकाउंटेबल रखो। इससे अब बाकी कुछ भी हो सकता है तो ठीक है यार, मतलब लक हैपेंस, ये चीज तो आप कंट्रोल कर सकते हो यार, इसमें तो अपनी मतलब पीछे नहीं रहना है ना, इसमें तो अपना खराब नहीं करना है, राइट? सो दिस इज रियल मेंटरशिप, इट लुक्स लाइक दैट। द रियल मेंटरशिप लुक्स लाइक दिस। आप कहीं भी जा रहे हो ये क्वेश्चन तो आने चाहिए 4 कि भैया ये है कि नहीं, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है। सो we started from here: strategy, content, mentorship. Fix these 3 pillars, you have a high probability, really good chance that you'll crack through this exam, you will have a rank, right? And proud to say हम हर साल बार हाई करे जा रहे हैं स्ट्रेटेजी का। कंटेंट में तो फोड़ दिया है भाई, ठीक है, यहाँ इस लेवल पे टच करना ही मुश्किल है। जितने भी लेगेसी इंस्टीट्यूट है सब लोग सब कॉपी करे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम सेइंग दिस। बहुत बड़े बड़े नाम भी हमारा माइक्रो थीम एक्स फैक्टर उठा के कॉपी करे जा रहे हैं, ठीक है। सो वो उसमें तो वी आर वेरी प्राउड। कंटेंट का बार तो हमने बी ब्रोक थ्रू कंटेंट में, तो मतलब अगर सीडी का कंटेंट आपकी टेबल पे नहीं है, आप बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हो, उठा लो। और बाय द वे फ्रीली है, तो ये भी कंप्लेन मत कर देना कि ये वो फीस लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। एक्सक्यूज गिरा दो भाई एक तरफ, ये लेके जाओ कंटेंट, पीडीएफ है, ऑफिस आ जाओ, लाइक कम टू द talk to a mentor, come to Delhi counseling office or headquarter, and then collect these things, right? Talk to a mentor also, और ORN में तो वहां से खरीद लो। तो कंटेंट में तो we are on another level, mentorship we are the pioneer, सबने कॉपी पेस्ट कर रखा है वो भी। सो ये 3 चीजें फिक्स करो, आ जाएगा, बहुत हाई चांस है, क्योंकि बाकी लोग का ऐसे ही है, ठीक है। ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ को चेक में रखो, एटसेट्रा, राइट? This is the program, UAP program, right? 26, 2026 and 2027 based on fault finding and course correction, nothing else, कोई बकवास नहीं है, just the grind,
just the rigorous hard work, rigorous assessment, continuous feedback, keep finding the fault, keep course correcting. Welcome to UAP 2026 and 2027. We are opening enrollments, right? We will be taking few very hard working, serious aspirants only this time. We don't want to waste your time, neither mentors or our time. If you're extremely serious, you can see through the exam preparation. You don't follow the noise, you don't follow the glamorous fancy YouTube videos, etc. आप बहुत सीरियस बच्चे हो, आपको 1-1.5 साल दिल लगा के एग्जाम निकालना है ना, इस प्रोग्राम से नीचे कुछ नहीं है. वेलकम टू यूएपी 2026 2027. अगर आप बिल्कुल सीरियस बच्चे हो, सीरियस एस्पायरेंट हो, इफ यू आर अ वेरी serious aspirant who wants to crack the exam in 1.5 year, 2 years, you want some rigorous assessment, rigorous mentorship, continuous feedback, continuous fault finding and scores correction, welcome to UAP 2026 and 2027. हम सिर्फ लिमिटेड बच्चे लेंगे. We'll be taking very few aspirants who are very serious, etc. And if you are one of those, feel free to join UAP. Enrollments are open. We are offering some scholarship also. There's a link in the description. You can just talk to us by clicking on that link, and make sure that you are staying in the line just for 2 years. Take care of yourself, and if there's anything that we can do to aid your preparation, to help you in your preparation, please feel free to come to our office in Delhi, Karol Bagh, or call us on our number on the website. We'll be more than happy to help you in this preparation. Take care. All the best for exam. Stay tuned. Keep watching Civils Daily.